Good morning to everyone. Today's lecture, I will start with one new chapter, that is redemption of preference shares. Now, here we have two words which meaning you have to understand. One is redemption. Now, what do you mean by redemption? Redemption means repayment. And repayment of what? Repayment of preference shares. Now, what is preference shares? Preference shares is a type of share which has preference for two things. One is for payment of dividend and another is for repayment of capital. Correct? So that is preference shares, and there are only two type of shares. One is preference shares and the other one is equity shares. And the preference shares have preference. Preference matlab pehla right, priority, first right towards two things. One is for the towards the payment of dividend, and second, what is dividend? Dividend is the return on shares. जैसे आप अगर लोन लेते हो तो आपको बदले में क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट ना. सो कंपनी रिक्वायर्स मनी, कंपनी रिक्वायर्स फंड्स टू रन इट्स बिजनेस. सो ये फंड्स, ये कैपिटल के लिए दो मीडियम है थ्रू विच कंपनी कैन रेज कैपिटल. फर्स्ट वन इज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट. सो जिसको शेयर सेल करते हैं उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. दे आर द ओनर्स of the company, and shares are of two types, equity and preference. So preference, equity are the equity shareholders give the permanent shares to the capital because equity shares have residual claim, last claim after paying everyone. Last में अगर पैसा बचा तो equity shares को उनका पैसा मिलता है. There is no such concept known as redemption of equity shares. ऐसा कोई concept है ही नहीं because equity shares को उनका पैसा वापस नहीं मिलता. Equity shares कब का पैसा? Only when the company is shut down तब मिलता है, वो भी सबसे लास्ट में. सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलता. बट वी हैव वन अदर कंसेप्ट नोन एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पे आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर रीपेड बाय द कंपनी. कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है. उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. द मीनिंग हियर वी हैव डन. सो मीनिंग मतलब व्हाट? After a particular period of time, the preference share capital of the company has to be repaid, paid back, and that is known as redemption of preference shares. Now, देखो, you must have done types of shares. उसमें आपने सुना रहेगा irredeemable preference shares. So irredeemable preference shares matlab those preference shares which are not repaid after a certain period of time, like equity shares. ये भी last में when the company is going to shut down, ये shares का payment होता है. But now at present मार्केट में कोई भी irredeemable shares नहीं, irredeemable preference shares नहीं exist करता because as per the Companies Act, the issue of irredeemable preference shares have been stopped. ऐसा कोई भी irredeemable preference shares अभी के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता. तो क्या रूल है कि इश्यू ऑफ irredeemable preference shares is not allowed now. अभी ऐसा शेयर्स नहीं एग्जिस्ट करता. पहले ये भी एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता था, लेकिन अभी आप कभी भी ये टाइप का irredeemable preference shares you will not find. So
जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है दे आर ऑल redeemable preference shares. So redeemed and what redeemed within period not exceeding 20 years. तो क्या होता है जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है वो लोग मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू होता है फॉर 20 years. But the company may issue preference shares for period more than 20 years, but those have to be for infrastructural projects. मतलब जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पीरियड मोर देन 20 years के लिए है दैट मे बी इशूड ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. So no such share shall be redeemed except out of the profits of the company. Now अब repay करना है तो कैसे repay करें? One more question comes कि कंपनी को उनका प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना है तो कंपनी कहाँ पे से कैसे पैसा वापस करेगी? सो कंपनी कैन डू दैट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट्स है विच otherwise can be available for payment of dividend can be used. इसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स. हम कौन सा रिजर्व्स कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द रिजर्व्स विच आर फ्री इन नेचर, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं. दोस प्रॉफिट को हम यूज करके रीपेमेंट कर सकते हैं. या तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करना है तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इशूड अनदर क्लास ऑफ शेयर्स अदर देन विच हैज टू बी रीपेड. हम फ्रेश इशू करते हैं शेयर्स का और उससे जो पैसे मिलते हैं उसको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन. So that also can be done for the purpose of redemption of preference shares. Now, no बोलते कि one condition is there that अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है तो द प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स? मतलब जब प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू किया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर्स का एक फेस वैल्यू होता है. फेस वैल्यू इज द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सेकेंड वन एक इशू वैल्यू होता है. Issue value is the value at which the shares are issued to the shareholders. So that issue value can be par, premium or discount. That can be par, premium or discount. Now what do you mean by par? Par means shares are issued at face value, printed value. तो उसको हम बोलते हैं shares issued at par. Then what do you mean by shares issued at premium? When the shares are issued at more than the face value, 100 rupees का शेयर है, हमने 100 से ज्यादा प्राइस में इशू किया तो हम बोलेंगे issued at premium. And issued at discount मतलब क्या, जो फेस वैल्यू से कम प्राइस में शेयर्स इशू किया जाता है that time we say shares issued at discount. Means 100 rupees is the face value, we are issuing the shares to the public at less than 100 rupees, then we say shares issued at discount. Now what do you mean by fully paid? देखो, when the share money is collected by the company, they may collect all the amount at once or they may collect at installments. मतलब जब अप्लाई किया, देखो सबसे पहले कंपनी इनवाइट द शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. And then once the shareholders apply, I mean public, not the shareholders. अभी ये लोग shareholders नहीं, shareholders कब होते हैं, जब उनको shares issue होता है. मतलब किसको invitation दिया, public को. public में से कुछ लोगों ने वो जो एडवर्टाइजमेंट है, वो इन्विटेशन है, उसको एक्सेप्ट किया. कैसे एक्सेप्ट किया? बाय अप्लाइंग फॉर द शेयर्स.
by paying some value which is known as the application money. अब application money में suppose 10 रुपीज 100 रुपीज का शेयर है मानते, तो 20 रुपीज कलेक्ट किया, तो जितना भी आपको शेयर चाहिए अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द 20 रुपीज. But the company may also collect all the amount in application, but there is also one provision to collect in installments application money के application के time पे थोड़ा, allotment के time पे when देखो जितने लोगों ने अप्लाई किया, अब डिपेंड की कंपनी के पास कितना शेयर्स है. अगर कंपनी के पास 1000 शेयर्स है एंड 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो कंपनी सब 10,000 शेयर्स को एप्लीकेशन को शेयर्स नहीं दे सकता है, बिकॉज द कंपनी हैज ओनली 1000 शेयर्स बट एप्लीकेशन हैज कम फॉर 10,000 शेयर्स. देन द representative of the SEBI will be called and the shares will be allotted on pro rata basis. Pro rata means what? रेशो में देंगे. किसी को कुछ भी शेयर्स नहीं मिल सकता, किसी को जितना अप्लाई किया है वो पूरा नहीं मिला, उससे थोड़ा कम मिला, मीन्स रेशो में शेयर्स दिया जाता है. When there is over subscription. Now what do you mean by over subscription? Means जितना कंपनी के पास शेयर्स है इशू करने के लिए उससे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, there is over subscription. Company has 1000 shares to issue, but we have got invitation for more than 1000. So ऐसे situation में the representative of the SEBI, because the allotment has to be done impartial on an impartial basis. पार्शली नहीं, अगर कंपनी ने दिया तो अपने पहचान वालों को दिया, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए विदाउट एनी पार्शियलिटी शेयर्स इशू होना चाहिए. इसलिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेबी कम्स इनटू पिक्चर एंड गिव्स द अलॉटमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट, वो तो सबको ही कलेक्ट करता है बिकॉज एप्लीकेशन इज गिवन बाय एवरीवन. फिर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी कलेक्ट किया, अभी भी फाइनल कॉल मनी इज पेंडिंग बाय द कंपनी टू कलेक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. तो ऐसे शेयर्स को बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स. क्या बोलते हैं? पार्टली पेड अप शेयर्स. एंड रिडेम्पशन में पार्टली पेड अप शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता. One condition is there, only fully paid up shares can be redeemed. मतलब जब रिडेम्पशन होना है तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, देन ओनली रिडेम्पशन कैन टेक प्लेस. Then one special reserve has to be created for the purpose of redemption of preference share, and that special reserve is known as capital redemption reserve. ये रिजर्व स्पेशली क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ये रिजर्व को क्यों क्रिएट किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए क्या करते हैं हम? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं. एंड हाउ इज द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड? बाय यूजिंग द फ्री रिजर्व्स. बाय यूजिंग द फ्री रिजर्व्स. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्री रिजर्व्स है तो उसको यूज करके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं. और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. समझा यहाँ पे? विच इज द स्पेशल रिजर्व विच इज क्रिएटेड? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. विच इज द स्पेशल रिजर्व? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. एंड हाउ इज इट क्रिएटेड? By using the profits of the company. And which profits? Profits which are free, which are available for the distribution of dividend.
ऐसे फ्री प्रॉफिट्स को यूज करके हम क्रिएट करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बिकॉज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व, इसको क्रेडिट बैलेंस होगा। रिजर्व मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस हम अस्यूम करते हैं। तो इसको कौन सा, ये जब भी क्रिएट होगा तो कौन से साइड में रहेगा? It will be in the credit side because it is a reserve and reserve is a liability. Then if redemption at premium provide by profits or through securities premium account. Now what do this mean? Means जब हम shares issue करते हैं तो 3 तरीका होता है इश्यू करने का। par, premium, discount, ये क्या होता है? I have explained already. Now at the time of redemption also there are these 3 situations. Redemption भी 3 तरीके से हो सकता है, par, premium and discount. Means when the preference shares are issued to the public, तभी दिया रहता है, क्लियर रहता है कि when will the preference shares be redeemed after 5 years, 10 years, 15 years, that will be clearly given. And कैसे redeem होने वाला है, par में, premium में, discount में, that also will be known to the public, known to the shareholders. Par means redemption at par means जितना शेयर का फेस वैल्यू है उतना ही वापस मिलेगा। इफ रिडेम्पशन एट प्रीमियम मींस जितना शेयर का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मींस जितना शेयर का फेस वैल्यू है उससे कम पैसा मिलेगा। एंड अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में है, that is more than the face value, then that extra पैसा जो देने वाले हैं वो या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे उसके लिए या तो प्रॉफिट्स यूज करेंगे। इधर वी विल यूज द प्रॉफिट्स और वी कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ द अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट वी कैन यूज बोथ ऑफ देम। सो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व वेरिन जब भी हम शेयर्स या डिबेंचर्स या कुछ भी प्रीमियम में इशू करते हैं, एनी सिक्योरिटीज इशूड एट प्रीमियम, सो वो प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में सेव करते हैं, तो हम वो पैसा यूज कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन, रीपेमेंट एट प्रीमियम, या तो हम प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं विच आर फ्री प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स, या तो we can use a securities premium. Now I have already told you what is a security premium. Securities premium is a special reserve where when shares are issued at premium, तो वो प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा मीन्स 100 रुपीज का शेयर है 110 रुपीज में इशू किया, तो 10 रुपीज का जो प्रीमियम हुआ है वो पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम में सेव करते हैं, तो वही पैसा हम यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सो that is the situation. If redemption is at premium, we may what we may do, we may provide by profit or we may provide by securities premium account. Then use the CRR for issue of fully paid bonus shares. Now have you heard about bonus shares? Bonus shares क्या होता है? Bonus shares are shares which are given for free of cost, and bonus shares are issued only to the equity shareholders. Bonus shares किसे दिया जाता है? Who are eligible to receive the bonus shares? Only equity shareholders. So equity shareholders को ये bonus shares free of cost में मिलता है। So ये bonus shares कहाँ इशू करने के लिए हम CRR दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम कहाँ यूज कर सकते हैं?
for issuing bonus shares to the equity shareholders. Getting my point? Where we will use this capital redemption reserve? Capital redemption reserve को कहाँ पे use करते हैं? For issuing fully paid bonus shares. Now, what is partly paid bonus share and what is fully paid bonus shares? Fully paid bonus shares मतलब there is one ratio. Suppose ये हमेशा रेशियो में होता है that suppose आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, मीन्स 10:1 रेशियो. आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा. कभी भी रेशियो के हिसाब से होता है बोनस शेयर इशू. बट देयर इज वन थिंग नोन एज पार्टली पेड बोनस शेयर. मतलब सपोज आपका इक्विटी शेयर जो है वो पार्टली पेड अप है तो बोनस शेयर्स इशू करके आपके पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को fully paid करेंगे. That is known as partly paid bonus shares, where your by issue of those bonus share, partly paid bonus shares, your shares become fully paid up. समझ में आया? Partly paid bonus shares क्या होता है? जहां पे आप आपके शेयर्स को fully paid बना सकते हो by issue of these bonus shares. बट CRR किस लिए यूज होता है? फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. नाउ व्हाट इज बोनस शेयर्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू. नाउ जस्ट let us do the summary. Let us summarize everything what we have learned. तो सबसे पहला पॉइंट, नो irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स. मैंने बताया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम द ईयर 1988 ये बंद हो गया. 1988 ईयर से दिस हैज बीन स्टॉप्ड. देयर इज दे हैव स्टॉप्ड इशूइंग इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. मीन्स उसके बाद जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं दोस आर ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स who after a particular period of time have to be repaid. Then preference shares redeemable within 20 years. Preference shares are redeemable within 20 years, but there may be redeemable preference shares beyond 20 years also, but those are for infrastructural projects. Then redemptions may be done out of divisible profit. Divisible profit means free reserves, which are free to be for the distribution of dividend, divisible profit or fresh issue, और both also combination भी use करते हैं कि redemption के लिए हमने क्या किया, या तो हमने fresh issue use किया या तो हमने फ्री रिजर्व्स यूज किया बाय क्रिएटिंग CRR, या तो हमने कॉम्बिनेशन किया, थोड़ा फ्रेश इशू थोड़ा CRR, that is free reserves, divisible profits. And redemption can take place only if the preference shares are fully paid. Redemption can take place only if the preference shares are fully paid, and we create कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. हम क्या क्रिएट करते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, विच इज अ रिजर्व. It is a liability and it is created by using the divisible profits, and it is created for the purpose of redemption of preference shares. It is created for the purpose of redemption of preference shares. And what is issued out of the CRR? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को शॉर्ट फॉर्म में हम CRR बोल सकते हैं. एंड इट इज CRR इज यूज्ड टू पे fully paid bonus shares. CRR is used to pay fully paid bonus share. And what is bonus shares? Bonus shares are shares given for free of cost and only to the equity shareholders. It is also known as capitalization of reserves. Correct? हम reserves को use करके क्या पे करते हैं?
बोनस शेयर्स पे करते फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. So in this chapter, you will have journal entries, which I will do in the next lecture, and you have balance sheet after redemption, जिसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा. बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, एक सम भी किया है बैलेंस शीट के ऊपर, तो वो फॉर्मेट ही ये चैप्टर में भी काम आएगा टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट. With this, I end today's lecture. Thank you very much, everyone.